Students, today we are going to do chapter 10, The Nightingale. Once long ago in China lived an emperor. His palace had the most beautiful garden in the world. This garden ended near a dense forest. In one of the trees of the forest lived a nightingale. It sang so sweetly that everyone stopped still and listened to its song. Once upon a time, in China, there was a king. There lived a king, and he had a most beautiful garden in his palace. And from the world, all the travelers used to come and see his garden and admire it. But when they listened to the song of the nightingale, they used to say that this is the best one. एक राजा थे, चाइना में रहते थे. उनका पैलेस में एक खूबसूरत सा गार्डन था. वो गार्डन एंड होता है एक फॉरेस्ट के वहाँ पे. और पूरे दुनिया से लोग ये देखने आते थे, ये गार्डन देखने आते थे. और जब गार्डन देखने के बाद जब वो एंड फॉरेस्ट के साइड पहुँचते थे और जब वो नाइटिंगेल का सॉन्ग सुनते थे, तब वो ये कहते थे कि ये नाइटिंगेल का सॉन्ग सबसे अच्छा है. Travelers came from all over the world to admire the emperor's palace and his garden. However, when they heard the nightingale song, they said, "This is the best of all." सब वो गार्डन को एडमायर करने आते थे, बट जैसे ही वो नाइटिंगेल का सॉन्ग सुनते थे, वो गार्डन को भूल के वो किसको एडमायर करते थे? नाइटिंगेल के सॉन्ग को, उसके वॉइस को एडमायर करते थे. Soon the emperor heard of the nightingale. Is there such a bird in my empire? I have never heard of it. I command the bird to be brought to my palace and made to sing before me. जैसे ही एम्परर ने ये सुना नाइटिंगेल के बारे में, नाइटिंगेल ने कहा कि क्या सच में मेरे एम्पायर में, सच में मेरे राज्य में कोई ऐसा बर्ड है? अगर ऐसा कोई बर्ड है, उसने कमेंट किया, उसने ऑर्डर किया कि उसको मेरे पास लेके आए. But where was a nightingale to be found? No one knew where it lived. At last, a poor little girl in the royal kitchen said, "I know where the nightingale lives. It lives in the forest. It sings melodiously. When I am tired, I rest under the trees and listen to the nightingale's song. Its singing makes me forget everything." अब राजा ने कहा कि बर्ड को लेके आओ, नाइटिंगेल को लेके आओ. किसी को पता नहीं था कि नाइटिंगेल कहाँ रहती है, बट जो राजा थे उनके किचन में काम करने वाली एक लड़की थी, उसे पता था कि नाइटिंगेल कहाँ रहती है, क्योंकि वो जो लड़की है वो अपना काम ख़त्म करके जब वो थक जाती थी तब वो उसी ट्री के नीचे आराम करने जाती थी. तब वो नाइटिंगेल गाना गाते थे और उसका गाना सुन के वो सब कुछ भूल जाती थी. So the little girl led the way into the forest. Half the court went with her. After walking a long distance, the girl stopped near a tree. She pointed to a little grey bird up in the boughs. "This is the nightingale," she said softly. अब धीरे से वो सारे वो जो सर्वेंट्स थे राजा के, जो कोर्ट में जो मिनिस्टर्स थे, उन सबको वो लेके गई और फॉरेस्ट की तरफ लेके गई. फिर उसने एक ट्री को दिखा के उसके ब्रांचेस में दिखाया और एक ग्रे कलर की बर्ड को दिखा के कहा कि यही है वो नाइटिंगेल जो बहुत स्वीटली गाना गाती है. "It can't be possible," everyone said in disappointment. "How dull it looks." सब वो बर्ड को देखे, सब डिसअपॉइंट हो गए, सब उदास हो गए. सब कहने लगे कि ऐसे नहीं हो सकता, ये तो बर्ड बहुत ख़राब दिखता है. "Little nightingale," said the girl, "our emperor wishes you to sing before him." "My song sounds the best in the forest," replied the nightingale. "But I will come to the palace because the emperor want me to." वो कहती है कि मेरा सॉन्ग सबसे बेस्ट है, बट स्टिल अगर तुम्हारे किंग अगर चाहते हैं तो मैं तुम्हारे साथ आऊँगी. सो द नाइटिंगेल वेंट टू द पैलेस. द एम्परर लुक्ड एट द बर्ड एंड ऑर्डर्ड इट टू सिंग.
The nightingale sang so melodiously that the emperor had tears running down his cheeks. He ordered that the nightingale remain in the palace. It was kept in the golden cage and given the most delicious food. और जैसे ही वो राजा के पास पहुँचे, राजा ने कहा कि अब तुम्हें मेरे लिए गाना गाना होगा। और जैसे ही वो बर्ड ने गाना गाया, राजा को इतना अच्छा लगा कि राजा के आँखों में से आंसू निकल आए। और राजा ने कहा कि इसको अब हमेशा पैलेस में ही हम रखेंगे और उसको एक गोल्डन केज में रखेंगे और उसको सारे अच्छे अच्छे खाना उसको खिलाया गया। The whole city talked about the wonderful bird. When two people met, one said nighting and the other said girl. This became a way of greeting. और वो नाइटिंगेल पूरे वर्ल्ड में इतनी फेमस हो गई, जब दो लोग मिलते थे तब एक नाइटिंग बोलते थे और एक गर्ल बोलते थे। ये उनका विश करने का, ग्रीट करने का तरीका बन गया था। One day the emperor received a parcel marked the nightingale. When he opened it, he was astonished. In it was a golden nightingale. There was a golden key lying beside it. The emperor wound up the golden nightingale with the golden key. It started singing a beautiful tune. 30 times it sang the same tune and yet was not tired. The emperor said that the live nightingale ought to be shown this wonder. और एक दिन राजा को एक पार्सल आया। वो पार्सल के अंदर एक गोल्डन नाइटिंगेल थी और वो गोल्डन नाइटिंगेल के पास एक चाबी भी था। और जैसे ही उसमें चाबी डाला और वो गोल्डन नाइटिंगेल गाना गाने लग गई। और वो भी इतना स्वीटली गाती थी और वो सेम सॉन्ग वो 30 टाइम्स गाने से भी वो थकती नहीं थी। ये देख के राजा ने कहा कि जो लाइव नाइटिंगेल है, जो रियल नाइटिंगेल है, उसको एक बार इससे मिलवाना चाहिए। But where was the live nightingale? Now had noticed that it had flown away out of the open window back to the forest. अब जब वो लोग ढूंढने गए लाइव नाइटिंगेल को, लाइव नाइटिंगेल वहाँ थी नहीं, वो उड़ के विंडो से वापस फॉरेस्ट में चली गई थी। How does it matter? We have the best bird after all, said everyone. The golden bird was made to sing again and again until everyone knew its tune by heart. सब ने कहा कि अब क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर वो चली गई, हमारे पास ये गोल्डन नाइटिंगेल है। और उसको इतने बार गाना गवाया कि उसका जो ट्यून है वो सबको पूरी तरह से याद ना हो जाए, उतने बार उसको गाना गवाया। So a whole year went by. Suddenly the emperor fell ill. In his illness he longed to hear a melodious song. Music, he said, precious gold bird, sing your song will make me well again. अब बहुत साल हो गया, 1 साल होने के बाद एकदम से राजा बीमार हो जाते हैं। राजा कहते हैं, वो गोल्डन बर्ड को कहते हैं कि तुम तुम्हारा स्वीट गाना मुझे सुनाओ ताकि मेरा तबीयत ठीक हो जाए। बट द बर्ड स्टूड स्टिल. इट वॉज worn आउट इनसाइड and there was no music left in it. The emperor longed for music, but the bird could not sing. Then from the window suddenly the most lovely song was heard. उसने गाना गाने को कहा गोल्डन बर्ड से, पर वो गोल्डन बर्ड वो गा नहीं पा रही थी क्योंकि उसको बार बार यूज़ करने की वजह से वो अंदर से उस ख़राब हो गई थी, डैमेज हो गए थे। इसकी वजह से उसके अंदर अब कोई म्यूज़िक नहीं बचा था। सडनली राजा को उसके विंडो के साइड से एक स्वीट म्यूज़िक सुनाई देता है। इट वॉज द लाइव नाइटिंगेल दैट sat outside on a tree. It had heard of the emperor's illness and had come to sing to him. It sang the most beautiful song. As it sang, the emperor felt better. वो कौन था? वो जो लाइव नाइटिंगेल थी वही थी। वो एम्परर के, जो राजा के इलनेस के बारे में, बीमारी के बारे में सुन के वो राजा के पास आई, राजा को गाना गा के सुनाने के लिए। और उसने इतनी खूबसूरती से गाना गाया कि राजा की तबीयत ठीक होने लगी। थैंक्स, सेड द एम्परर, you must always stay with me. Not so, replied the nightingale. I cannot live in palace. I will come and sit on the tree by the window every evening and sing for you. But you must promise me one thing. Anything, said the emperor.
Let not any bird live in a cage. The emperor smiled and said, As you wish, my nightingale. The nightingale flew away happily, only to return the next day. अब एम्परर ने वो सॉन्ग सुन के एम्परर ने नाइटिंगेल को थैंक यू कहा और उसको कहा कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे अब से। नाइटिंगेल ने मना किया। नाइटिंगेल ने कहा कि नहीं, मैं पैलेस में नहीं रह सकती क्योंकि मुझे फॉरेस्ट में रहना पसंद है। बट उसने कहा कि मैं हमेशा इवनिंग में आके आपके लिए गाना गा के जाऊँगी। बट उसके लिए उसने एक प्रॉमिस मांगा और वो प्रॉमिस था, उसने ये से कहा कि आपको किसी भी बर्ड को हमें कभी भी केज में आप नहीं रखोगे। ये सुन के राजा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि जैसे तुम चाहते हो वैसे ही होगा। और ये सुन के वो जो नाइटिंगेल है वो उड़ के चली जाती है दूसरे दिन वापस आने के लिए। सो हियर वी कंप्लीट आवर चैप्टर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. कीप रिवाइजिंग इट.